welcome to Santosh Sir classes. And in this video, I'll be telling you a few important questions on India's foreign trade, IBO 03. And when IBO 03 में यूनिट 1 to यूनिट 8 तक ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन 8 से लेके 14 यूनिट 14 तक थोड़ा सा चैप्टर सब्जेक्ट बोरिंग हो जाता है, बिकॉज एग्रीकल्चर, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, इन सब के बारे में है। तो ये पर्टिकुलरली ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि लर्न करना पड़ेगा उनको काफ़ी सारी चीज़, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ साथ यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को कॉम्प्लेक्स बना देता है यही चीज़ IBO 03। ओके, एनीवे, let's start the topic and let's see what are the important questions and answers that I will share in this video. Kindly watch the video till the end because we will be covering all the units, right? Unit 1 and Unit 1 is on Indian foreign trade and इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो जून 2022 एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम्स में, उसको भी हम लोग देखेंगे। व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट स्ट्राइक इन द एग्ज़ाम। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। नाउ ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है यूनिट 1 से, कि फॉरेन ट्रेड एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कैसे हेल्प करता है। एंड यहाँ पे जैसे इन माई स्टडी मटेरियल आई हैव रिटन 7 पॉइंट्स, like it helps to develop infrastructure in the country, it provides employment opportunities, then it helps to meet the shortage of essential consumer goods like wheat, rice, edible oil, like that. Then capital goods ki supply like machineries and important raw materials that can be imported by foreign trade. Then surplus production है, तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच के वी कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको डिफाइन करना चाहिए इस क्वेश्चन में। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट। नाउ दिस क्वेश्चन केम इन जून 22, प्रॉब्लम्स और इश्यूज ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ये क्वेश्चन जून 22 में आया था। एंड एज बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पोअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पोअर टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, the products are less reliable, that means the quality is not good, infrastructure is very poor, and there are also supply problems. So you can define all these points, very easy question. And the next one is the major issues in the world, total पूरे world में, like what are the major issues in the international trade. So these are all the problems that I've written here, 7 points in this. Like there may be economic warfare among the nations, politicization is there, state capitalism is there, that is one of the problem. Then lack of a good leadership of the whole world, power distribution, now that is also a big problem. There are weak underdogs. Okay, there are few countries which are very weak, so they are just the puppets in the hands of developed countries, and there are frequent price changes in the world. So like this you can define these points. Okay, let's see the next unit, Unit 2, India's balance of payments. Now कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं एमकॉम में जो बहुत सारे यूनिट्स में हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हैं। तो ये एक है उसके अंदर BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, बिकॉज ये जून 2022 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था। So you might get a question from balance of payment. You must read what is balance of payment, then what are the important components of balance of payment. Then we can also the different types of accounts in the balance of payment. Then factors that affect the balance of payment. Then we have methods of correcting disequilibrium in the balance of payment. Now this is the most important part of balance of payment, जहाँ से क्वेश्चन ऑलवेज बनता है हर सब्जेक्ट के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। देन वन मोर डिफरेंस इज देयर इन दिस टॉपिक, लाइक बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT एंड BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये भी आपको एग्जाम्स के लिए ज़रूर से पढ़ना चाहिए। ओके, यूनिट 3 इज़ ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड ट्रेड। ओके, ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
लाइक व्हाट आर द इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड ट्रेड में क्या क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपके स्टडी मटेरियल में भी यही 4 पॉइंट्स हैं। जैसे रीजनलिज्म वर्सेस मल्टीलैटरिज्म, लिबरलाइजेशन वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वर्सेस ईडीआई दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, एनवायरमेंटल चैलेंजेस। सो लाइक दिस, ये सब पॉइंट्स को आपको डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन केम इन जून 2022। रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड ट्रेड। एंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बना था वो बना था WTO पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, इसके फंक्शंस एंड हाउ लाइक इंडिया एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर WTO नहीं आया तो गट्स तो आना ही है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। गट्स दैट इज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गट। तो WTO का ही संस्था है एंड इसमें आपको जो लर्न करना चाहिए, जो टॉपिक्स, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गट, द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ गट, देन द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 4, एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। ओके, यहाँ से भी बहुत कम क्वेश्चंस आया था जून 2022 में। तो यू माइट गेट क्वेश्चन इन दिस December 2022 फ्रॉम दिस यूनिट 4, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इन इंडिया। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट एंड इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स, कमेंट्स आपको मिलना ही है। वन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम दिस। नाउ जैसे कि यहाँ पे इंडिया ने लाइक व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एक्सपोर्ट। So these are all the measures, like export processing zones, then EOU, then export promotion industrial park scheme, special economic zones, ये सबसे important है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है आपको। एक्सपोर्ट हाउसेस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, देन EPCG। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। ड्यूटी एग्जेम्पशन है, एक्सपोर्ट फाइनेंस, सो लाइक दैट ये सारे पॉइंट्स को आपको डिफाइन करने हैं वन बाय वन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके ऊपर आपको डोंट फॉरगेट दैट इसके अंदर शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको इसको लर्न करना है, ध्यान देना है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। ये भी मोर और लेस लाइक प्रीवियस ईयर्स के कोई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड उसके मेन फंक्शंस क्या हैं, लाइक हाउ इट प्रमोट्स एक्सपोर्ट्स। तो इसके ऊपर आपको हाईलाइट करना है आंसर्स को, जैसे प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, असिस्टिंग द इंसेंटिव स्कीम्स, एक्सपैंडिंग द मार्केट, देन स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप, टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लाइसनिंग करना, देन असिस्टिंग इन पॉलिसी मेकिंग। तो लाइक दैट बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। जो पॉइंट्स आपको याद नहीं आते हैं, कुछ भी लाइक यू कैन ऐड from your own this thing. Then the different advantages of export councils, ये भी बहुत ही important question है। ओके, ये स्टडी मटेरियल में यू विल गेट ऑल important questions in fact. Unit 5, trade policy, provisions of India's EXIM, that is export import trade policy। ये क्वेश्चन जून 2022 में आया था, राइट? तो you might not get this question in December। तो आगे चलते हैं। प्रोविजंस ऑफ इंडिया ट्रेड पॉलिसी, जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक। दिस वन ऑल्सो केम इन जून 2022 एग्जाम। व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड बाय इंडिया टू इंटीग्रेट देयर ट्रेड विद द वर्ल्ड ट्रेड। दिस क्वेश्चन ऑल्सो स्ट्राइक इन जून 2022। सो द नेक्स्ट यूनिट इज इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के अंदर लाइक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं, ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर में भी है, तो यहीं से आप अच्छे से इसको पढ़ के समझ के चलें तो अच्छा है, बिकॉज सेकेंड ईयर में वापस ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। तो ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1991 in fact one of the most important year for Indian economy. So like this,
इसके अंदर कुछ और देख लेते हैं, लाइक व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, देन फीचर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में, दिसंबर एग्जाम्स में मिल सकता है कि जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया। जैसे कि मोर और लेस ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, टॉपिक। एक क्वेश्चन को याद कर लिया तो यू कैन राइट द आंसर्स ऑफ अदर टॉपिक्स जो रिलेटेड होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन, दोनों काफ़ी क्लोज आंसर्स हैं, तो बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए यही फायदा है, लाइक 2 3 4 5 क्वेश्चन आप लर्न कर लिया तो यू कैन इजीली आंसर द अदर क्वेश्चंस। ओके, now this question also came in the previous year's exams. Important documents required in the international trade, like you need a air waybill, then you need a certificate of origin, then bill of lading, then combined transport documents, you need a draft, that is bills of exchange, insurance policy, पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए, एंड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सपोर्ट ट्रेड में एक एक्सपोर्टर को निकालने पड़ते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। नाउ स्टार्ट्स द लिटिल बिट बोरिंग चैप्टर। यहाँ से शुरू होता है यूनिट 8 से लेके यूनिट 14 तक। इसके अंदर जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल, ये सारे यूनिट्स जो हैं, जो नेक्स्ट जो हम लोग 6 यूनिट्स करेंगे, तो इसके अंदर मेनली आपको ध्यान देना है लाइक प्रोस्पेक्ट या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ इंडिया, देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो लाइक मेन गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या है, इंडिया के स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, बस ये 2 3 4 टॉपिक को आपको ध्यान देने हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर पे लास्ट जून 2022 में क्वेश्चन आया नहीं था, यहाँ से आया था, टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर। यहाँ से जून 2022 में यूनिट 9 को टारगेट किया गया था, तो आपको ज़रूर से अच्छे से यूनिट 8 करना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। यूनिट 10, यूनिट 10 इज़ ऑन जेम्स एंड ज्वेलरी। नाउ दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी हॉट टॉपिक। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हर साल आता है। तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट, देन प्रॉब्लम्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, देन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू प्रमोट जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो लाइक दिस। यूनिट 12 इज़ ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ये भी जून 22 में आए थे एग्जाम्स में। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट एक्सपोर्ट ट्रेड। तो मोर और लेस आई डोंट थिंक यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम हियर, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे है इंजीनियरिंग गुड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेजर सेगमेंट्स क्या हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ की, इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ की लाइक प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, वीकनेसेस, तो इसको आपको ध्यान देना है। देन व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ engineering goods, so you must take care of this question. The next is chemical goods. From here also you might get a question in December 22 exams, and जैसे यहाँ पे prospect of chemical industry in India, then what are the competitive advantage of India, then what are the opportunities of chemical industries for India. So like this, ये कुछ important questions हैं जो आपको prepare करने चाहिए। Okay, Unit 15 is on services. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था जून 2022 में, लाइक व्हाट आर द इश्यूज और चैलेंजेस इन इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज। सो जस्ट गो थ्रू दिस। जो जो क्वेश्चन आया था उसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एकदम इग्नोर करना है, पढ़ना जरूर है, हो सकता है शॉर्ट नोट्स या कमेंट्स में आ जाए। ये भी क्वेश्चन जून 2022 में आया था। देन व्हाट आर द सजेशंस टू बूस्ट सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। नाउ यूनिट 16 से लेके यूनिट यूनिट 18 तक, 18 तक इनफैक्ट, ये भी थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इंडिया के कैसे रिलेशन है, इंडो यूएस रिलेशंस, इसके मेन प्रॉस्पेक्ट क्या है, चैलेंजेस क्या है,
एंड मेनली कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है अमेरिका से। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है इसके ऊपर। वैसे ही इन द सेम वे लाइक यूनिट 17 में यूरोपियन यूनियन एंड CIS कंट्रीज़, तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन आया था जून 2022 में, यूरोपियन यूनियन को लेके आया था। एंड अगेन सेम चीज़ आपको लर्न करनी है कि इसका मेन प्रोस्पेक्ट क्या है, एग्रीमेंट्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट आइटम्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ओके, द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 18, अगेन विद जापान, इंडो जापान रिलेशन। एंड इसके मेजर मेन ऑफ लाइक strategies and how the relationship works, and what are the volumes of trade, what are the items that Japan imports and exports to India. So like this. Now unit 19, this is also one of the most important unit of IBO 03. And in this unit we have two main topics, that is Asian and SARC. इसके ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाए हुए हैं, एंड यू मस्ट वॉच, you just search my playlist of IBO 03, you will get all important videos, the previous videos of IBO 03, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए। तो सार्क के मेन लाइक एशियन के मेन रोल, देन सार्क के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन सकता है। सो लाइक दिस, ओके। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, अचीवमेंट्स ऑफ, तो मैंने काफ़ी सारे इसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो फ्रेंड्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। देर आर सम यूनिट्स जो मैंने इग्नोर कर दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, बिकॉज बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जिसमें सेम टॉपिक्स बार बार रिपीट किया गया है, तो दैट्स वाई आई हैव इग्नोर्ड देम। And please revise these questions. These questions are very very important, and a very best of luck for the exams. Thank you for watching my video.